So, very good evening, friends. Today, we are going to start with part 3. Part 3 of IBC. As we know, IBC is covered in 5 parts. Part 1 and part 2 we have already covered. Today, we will be starting with part 3. This part 3 of IBC, it relates to insolvency resolution and bankruptcy for individuals and partnership firms. In case of part 2, it was regarding insolvency and liquidation. But here the word used are insolvency resolution and bankruptcy. I gave you a brief snapshot of what is contained in part 3 yesterday. But now let us read section by section. So section 78, it says this part shall apply to matters relating to fresh start. So fresh start is another concept. Fresh start has got very limited applicability, and fresh start is applicable only to persons with certain specified income or asset level. Insolvency and bankruptcy of individuals and partnership firms, where the amount of the default is not less than 1000 rupees. So the minimum amount of default is 1000 rupees. If somebody owes you 999, then you cannot file an application for insolvency, provided that the central government may by notification specify the minimum amount of default of higher value, which shall not be more than 1 lakh rupees. So whenever the government wants to notify, it can notify the minimum amount as 1 lakh rupees to the maximum. But till date, there is no such notification. 79. So it says the adjudicating authority. तो एक क्वेश्चन था इसमें हाँ, कि जो why did this provided that the central government, why did they have to mention this? What is the relevance in law of this particular line? Actually, any amendment to any act can be through either the act itself or by way of rules. So whenever they say by notification, so they will simply issue a notification and it will not require amendment in the act. So if they write something in the act itself, it means it will not require any amendment. It need not be taken to the parliament for such change. So that is why they specify these things. Definition. In this part, unless the context otherwise requires, adjudicating authority means the debt recovery tribunal constituted under subsection 1 of section 3 of the RDB Act. So adjudicating authority in case of individuals and partnership firms is DRT. Here there is the concept of the associate. As we know, in corporate insolvency and liquidation, the concept is of related party, which is covered in section 5 subsection 24. Here associate word is used. So associate of the debtor. And here there is no distinction between financial creditor and operational creditor. There is only debtor and creditor. जैसे वहां पर क्या है, corporate debtor है, financial creditor है, operational creditor है. यहाँ पर क्या है, debtor है और creditor है. Associate कौन है? Associate a person who belongs to the immediate family of the debtor. एक तो immediate family member, ठीक है. उसके बाद a person who is a relative of the debtor or a relative of the spouse of the debtor, ठीक है. Spouse we know husband and wife, husband or wife, ठीक है. A person who is in partnership with the debtor, so any partner of the debtor is also associate. The person who is a spouse or relative of any person with whom the debtor is in partnership, ठीक है. कौन है? स्पाउस या रिलेटिव है ऑफ एनी पर्सन विद होम द डेटर इज इन पार्टनरशिप. तो जो पार्टनर का आपका स्पाउस है या उसका रिलेटिव है, वो भी आपका एसोसिएट है. ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयर ऑफ द डेटर और एम्प्लॉय ऑफ द डेटर, तो ये सारे एसोसिएट में आएंगे, ठीक है. जैसे वहां पर रिलेटेड पार्टी, यहां पर एसोसिएट है. अगला, ए पर्सन हु इज ए ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट इन विच द बेनिफिशियरीज ऑफ द ट्रस्ट इंक्लूड ए डेटर or the terms of the trust confer a power on the trustee which may be exercised for the benefit of the debtor. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक है रामलाल, ठीक है. रामलाल खुद तो इंडिविजुअल है, अब वो एक ट्रस्ट में ट्रस्टी भी है, ठीक है. अब उस ट्रस्टी में क्या है कि कुछ पावर ऐसी दी गई है, जैसे हमें मालूम है कि ट्रस्ट में क्या होता है
एक तो होता है सेटलर, ठीक है, और एक होता है हमारा बेनिफिशियरी, ठीक है, ट्रस्टी होता है। सेटलर, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी अलग अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि आपने ट्रस्टी के लिए कोई ऐसी चीज कर रखी है कि जो उसके बेनिफिट के लिए एक्सरसाइज हो सके। एक मिनट में एक कॉल ले लूं। हाँ जी, सॉरी। तो इसमें क्या है, ए पर्सन हु इज ए ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट इन विच द बेनिफिशियरीज ऑफ द ट्रस्ट इंक्लूड ए डेटर or the terms of the trust confer a power on the trustee which may be exercised for the benefit of the debtor। कई बार क्या होता है, ट्रस्ट में क्या होता है कि कोई पावर होती है भाई, उसके बेनिफिट के लिए एक्सरसाइज की जाएगी, ठीक है। तो अगर डेटर जो है, ठीक है, वो ट्रस्टी है, ठीक है, ए पर्सन हु इज ए ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट, तो वो उसका एसोसिएट मान लिया जाएगा, ठीक है। बेनिफिशियरी मतलब क्या है कि एक एक आदमी है रामलाल, ठीक है, श्यामलाल उस ट्रस्ट का ट्रस्टी है, और श्यामलाल को ये पावर दी गई है कि भाई जो रामलाल है उसको आप 5,000 रुपए महीना देते रहो, ठीक है। तो ये फिर एसोसिएट में आ जाएगा श्यामलाल रामलाल का, ठीक है। अगला है ए कंपनी वेयर द डेटर और द डेटर along with his associates own more than 50% of the share capital of the company or control the appointment of the board of directors of the company, ठीक है। अगर कोई कंपनी है जहां पर जो डेटर है या डेटर अलॉन्ग विद हिज एसोसिएट्स, एसोसिएट्स में ऊपर पढ़ लिए हमने सारे, ठीक है, इन दोनों के पास मिला करके 50% से ज्यादा शेयर है, या वो कंट्रोल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। और इसका यहां पर क्या मतलब है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन रिलेटिव विद रेफरेंस टू एनी पर्सन मींस एनीवन हु इज रिलेटेड टू अनदर, इफ पहला अगर मेंबर्स ऑफ एचयूएफ हैं तो वन पर्सन इज रिलेटेड टू द अदर इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है, तो वो रूल्स में दिया होगा। उसके बाद बैंकरप्ट का क्या मतलब है, बैंकरप्ट वो है डेटर वो है, तो ये हो गया हमारा एसोसिएट। तो सेकंड वाला पार्ट हमारा एसोसिएट का हो गया। एक मिनट, ये हमारा चल रहा है सेक्शन 79, ठीक है जी। तो सेक्शन 79 तो सेक्शन 79 में जहां पर हमने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पढ़ा था, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में हमने क्या पढ़ा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मींस द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ आरडीबी एक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो एस्टेब्लिश इस अगर हम इसको अब आरडीबी एक्ट पर जाएं, आरडीबी एक्ट में क्या लिखा हुआ है, आरडीबी एक्ट में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश वन और मोर ट्रिब्यूनल्स टू बी नोन एज द डीआरटी टू एक्सरसाइज द जुरिडिक्शन पावर्स एंड अथॉरिटी कन्फर्ड ऑन सच ट्रिब्यूनल बाय और अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो डीआरटी एक से ज्यादा हो सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एसोसिएट की जहां तक बात है, तो एसोसिएट में हमने ये डेफिनेशन पढ़ी, ए पर्सन हु बिलोंग्स, ठीक है। और अगर हम इसके जो रूल्स पढ़ते हैं, तो रूल्स में क्या लिखता है कि रिलेटिव कौन है, रिलेटिव कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज 2 ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सबसेक्शन 2, ठीक है, द मैनर ऑफ रिलेशनशिप शैल मीन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन द एक्सप्लेनेशन टू क्लॉज 24A ऑफ सेक्शन 5, ठीक है। तो अब ये कहता है कि जो सेक्शन 2 का जो आपका क्लॉज 2 है, ठीक है, ये क्लॉज 2 कहां पर आ रही है, ये आ रही है क्लॉज 2 आपकी, वन पर्सन इज रिलेटेड टू अदर इन सच मैनर, यहां पर थे हम, है ना, इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो प्रेस्क्राइब्ड की जहां तक बात है, वो कहता है कि आपको ये कहां पर देखना है, ये आपको देखना है सेक्शन 5 सब सेक्शन 24A में, ठीक है। तो 5 का 24A भी पढ़ लेते हैं, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये रूल्स में, अच्छा अच्छा, ये इसके साथ ही रूल्स है ना बुक में। हाँ तो हाँ देख रहा हूँ। हाँ, अगर आप ये रूल्स देख लेंगे, और इसमें क्या है, ये रूल्स आए किसके लिए, ये आए हैं पर्सनल गारंटर्स के लिए, जो अभी इंडिविजुअल्स हैं या जो पार्टनरशिप फर्म है, उनकी इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी के रूल्स नहीं आए हैं। ये सिर्फ आए किसके हैं, जो पर्सनल गारंटर हैं टू कॉर्पोरेट डेटर, सिर्फ उन्हीं के लिए आए हैं रूल्स, ठीक है। कल हमने सेक्शन 60 भी पढ़ा था, तो सेक्शन 60 में भी उसका कुछ रेफरेंस आया था कि अगर किसी कंपनी की पहले से कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उसके पर्सनल गारंटर की भी अगर प्रोसीडिंग चलती है, तो वो फिर एनसीएलटी में चलेगी।
तो अभी ये जो रूल्स आए हैं, ये रूल्स भी आपके इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन और जो अपना बैंक्रप्सी है, ये आए हैं पर्सनल गारंटर्स के लिए। हमें सिर्फ वही रूल्स और रेगुलेशंस पढ़ने हैं। तो वहां पर क्या लिखा है, वहां पर लिखा है कि जो एक्सप्लेनेशन, ये रोमन सब 2 है ना, तो वो लिखा है 1 पर्सन इज रिलेटेड टू द अदर इन सच मैनर एज मे प्रेस्क्राइब। तो कहता है इसके लिए आप क्या देखो, ये देखो सेक्शन 5 सबसेक्शन 24A। तो 524A पढ़ लेते हैं एक बार। कितने नंबर पेज में गुप्ता था वो? एक मिनट। A director or a partner of a corporate director or a relative of a director एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन टू क्लॉज 24A ऑफ सेक्शन 5। सेक्शन 5 की क्लॉज 24A। Section 2.1.37 पे 1.37 2.1.37 हाँ। तो 5 का 2A आ गया, रिलेटेड पार्टी इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मींस। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां से ले लेनी है 24A से। Okay. ठीक है, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं, कंट्रोल F करके। है क्या हमारे पास? अगर नहीं है तो ये मैं डाल दूंगा उसमें। Mhm. 326। एक मिनट, सर इसको देख लेता हूँ। हम्म 24 तो इसमें लिखा है हमने, लेकिन 24A नहीं लिखा। ठीक है ना जी, तो कोई बात नहीं, 24A भी इसमें डाल दिया जाएगा। 24A हमने इसमें नहीं लिखा। एक मिनट आप मुझे और दीजिए। तो 24A बोलता क्या है, रिलेटेड पार्टी में कौन कौन, आप पढ़ना जरा नागपाल जी, एक बार पढ़ना रिलेटेड पार्टी। related party in relation to individual means a person who is a relative of the individual or a relative of the spouse of the individual, be a partner of limited liability partnership or a limited liability partnership or a partnership firm in which the individual is a partner. A person who is a trustee of a trust in which the beneficiary of the trust includes the individuals, or the terms of the trust confers a power on the trustee which may be exercised for the benefit of the individual. A private company in which the individual is a director and holds along with his relatives more than 2% of its share capital. A public company in which the individual is a director and holds along with relatives more than 2% of its paid up share capital. A body corporate whose board of directors, managing director or manager in the ordinary course of business acts on the advice, directions or instructions of the individual. A limited liability partnership or a partnership firm whose partners or employees in the ordinary course of business acts on the advice, direction or instructions of the individual. A person whose advice, direction or instructions the individual is accustomed to act. A company where the individual or individual along with the related party own more than 50% of the share capital of the company or controls the appointment of the board of directors of the company. Or for the purpose of this clause, related with reference to any person means anyone who is related to another in the following manner, namely members of a HUF, husband, wife, father, mother, son, daughter, sons, daughter and son, daughters and son, grandsons, daughter and son, granddaughters, daughter and son, brother, sister, brothers, son and daughter, sisters, son and daughter, fathers, father and mother, mothers, father and mother, fathers, brother and sister,
mother's brother and sister, and where the relation is that of a son, daughter, sister, or brother, their spouses shall also be included. Nothing they have left actually. I think they have covered everything. All possible angle. नहीं, आप बताओ इसमें क्या कवर नहीं होगा, ये बताओ जरा पढ़ के वही इसको। मैं सोच रहा हूँ क्या कवर नहीं होगा। नहीं नागपाल जी, इसमें बुआ कवर होती है, ना, ब्रदर फादर सिस्टर है ना। फादर सिस्टर, ठीक है। Father, brother and sister फादर आ गया ना, मदर, ब्रदर्स फादर फादर्स मदर। ब्रदर एंड सिस्टर आ गया, एंड मदर्स फादर एंड मदर आ गया, मदर्स ब्रदर एंड सिस्टर आ गया, तो मासी भी आ गई इसमें तो। साडू हो सभी जाता आ गए। कवर, साडू हो जाता कवर इसमें। साडू भी आ रहा है। देखो देखो, होता है नहीं होता। मदर्स फादर एंड मदर, फादर्स ब्रदर एंड सिस्टर, मदर्स ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर एंड सिस्टर लिखा है, साडू नहीं लिखा है। साडू कवर नहीं होगा इसका मतलब है। तो शायद जिसको साडू कवर नहीं है। को ब्रदर कहते हैं ना। हाँ, को ब्रदर नहीं है, को ब्रदर कहीं भी वर्ड यूज नहीं किया। सर आपको साडू याद आ रहा है बहुत। नहीं, मेरे को याद कुछ नहीं आ रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कौन सा कवर नहीं हो रहा भाई। हमें तो क्या लॉ को इस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या कवर नहीं होता इसमें, वो तो चीज ये कोई दूसरे एक्ट से भी लिया होगा, दूसरे एक्ट में भी सेम रिपीट किया हुआ होगा, मेरे को लगता है इनकम टैक्स में भी। सर ये जो लास्ट में लिखा हुआ है, where the relation is that of son, daughter, sister or brother, their spouses shall also be included. उनका हाँ, वो भी भी लिख तो आ गया, सकता है सर वो वो। भी आ गए, फिर को ब्रदर भी आ गया, वो ब्रदर आ गया ना सर यहाँ पर आ गया, आ गया। क्यों लास्ट वाली लाइन में। Wherever the सिस्टर का relation is that of a son, सिस्टर का daughter, स्पाउस मतलब जीजा हो गया। सिस्टर का स्पाउस क्या हुआ, जीजा हुआ ना। son, daughter, sister और brother, Son, daughter, their sister or brother. spouses shall also be included लिख दिया, मतलब वो जीजा वो भी आ गया ना। जीजा ही तो हुआ, साडू कहाँ से हो गया। वो तो साडू पता क्या होता है, साडू तो होता है सिस्टर का, वाइफ का सिस्टर वाइफ की का सिस्टर का हस्बैंड, husband, वाइफ हाँ। का वो जीजा हो गया ना। सन, डॉटर, सिस्टर और ब्रदर। ये मतलब ये सिस्टर, ये रिलेशनशिप के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छा है ये चार्ट, पूरा कवर हो जाएगा एक्सेप्ट पूरा साडू। नहीं हो रहा ना, वही तो पूछ रहे हैं ना, पूरा नहीं कवर हो रहा ना। ये छोटे बच्चों को रात को सुलाने के लिए sometimes नहीं they can सच में use- आप सुलाने के लिए आप नहीं, इसमें जगह रहेगा। देखना, देखो मुझे लगता है साडू कवर नहीं हो रहा है इसमें, आप देखना अच्छा, इसमें। ये नहीं है, स्ट्रेच नहीं लगता है आपको? बहुत स्ट्रेच है ये सब रिलेशन, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स कवर किया है भाई relative देखिए में। उसमें क्या है, तो भाई लॉ में तो ये सब चीज लगानी ही पड़ती है ना, ये बात है। अदरवाइज इनकम टैक्स में भी सेम होगा ना गुप्ता साहब, हाँ, कहीं ना ऑलमोस्ट कंपनीज एक्ट में देखो, इनकम टैक्स में देखो, मोर और लेस सेम ही रहता है। same इनकम आएगा। टैक्स से ही शायद लिया गया है। आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया रिलेटिव, तो ये आपको कहां पर देखना, मैं यही लिख देता हूँ उसमें। एज में भी ऐसा सवाल तो नहीं रहेगा ऐसा कि भाई पर्सन में साडू इंक्लूड होता है बिल्कुल कि नहीं? रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, रह सकता है। सी सेक्शन, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, सी सेक्शन 524A, ठीक है जी, उससे याद रहेगा। यहीं पर आप भी लिख सकते हैं अपने उसमें, ठीक है ना। तो जहां प्रेस्क्राइब्ड लिखा ना, तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 24A में देख लीजिए। अच्छा, बैंकरप्ट का क्या मतलब है? ए डेटर हु हैज बीन एडजस्ड एज बैंकरप्ट बाय ए बैंकरप्सी ऑर्डर अंडर सेक्शन 126। हाँ जी, तो बैंकरप्ट कौन है? ए डेटर हु हैज बीन एडजस्ड एज बैंकरप्ट बाय ए बैंकरप्सी ऑर्डर। आगे चलते हैं, अगला है जी, each of the partners of a firm where a bankruptcy order under section 126 has been made against a firm। किसी फर्म की अगर बैंकरप्सी हो जाए तो जितने भी उसके पार्टनर्स हैं वो कवर इसके अंदर हो जाएंगे, वो बैंकरप्ट में आ जाएंगे, ठीक है। एनी पर्सन एडजस्ड एज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, ये भी बैंकरप्ट में आएगा। तो बैंकरप्ट का ये 3 मतलब है। सवाल पूछ सकता है बैंकरप्ट के ऊपर, बैंकरप्ट डज नॉट इंक्लूड, ऐसा उल्टा पूछ लेता है वो। मतलब ये अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कैसे होगा? एडजस्ट मतलब कोर्ट का ऑर्डर होगा या हाउ? देखिए ऐसा होता है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट में फर्क क्या है? डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट वो होता है जिसके अगेंस्ट में कोर्ट का डिस्चार्ज ऑर्डर हो गया, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है, इसकी बहुत बार बैंकरप्सी हो चुकी थी, 6-7 बार, समझ रहे हैं आप। तो क्या होता है, जब आप डिस्चार्ज हो जाते हो, डिस्चार्ज ऑर्डर इश्यू हो जाता है, तब आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हो। जैसे मान लो कोई सजा भुगत के आ गया, समझ रहे हो आप। ओके। तो यही चीज है। जो अभी अनडिस्चार्ज है, मतलब जिसके अगेंस्ट में डिस्चार्ज ऑर्डर इशू नहीं हुआ, अगर डिस्चार्ज ऑर्डर इशू होगा फिर तो बिल्कुल पवित्र हो गया। माने द मैटर इज अंडर कंसीडरेशन। यस, हाँ। अगला जी, बैंकरप्सी मींस द स्टेट ऑफ बीइंग बैंकरप्ट, ठीक है। तो बैंकरप्सी ये है,
उसके बाद बैंक्रप्सी डेट, ये बैंक कहाँ जा रहा है? ये जो बैंक्रप्सी मींस द स्टेट ऑफ बीइंग बैंक्रप्ट, इसका हाँ। कोई एग्जांपल? भाई देखिए ऐसा है, मतलब एक आदमी बैंक्रप्ट डिक्लेयर हो गया तो बैंक्रप्सी और बैंक्रप्ट को आपको इंटरचेंजेबली यूज करना, इतना ही मतलब है इसका। नहीं, जैसे बैंक्रप्ट तो वो हो गया जो कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी आ गया, इज बीन डिक्लेयर्ड एज हाँ अ हाँ बैंक्रप्ट। हाँ। और तो ये जो बैंक्रप्सी मींस द स्टेट ऑफ बीइंग बैंक्रप्ट, हाँ तो इसका ये भी मतलब सब ये है, जुडिस। नहीं 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 ऐसा नहीं है, द स्टेट ऑफ बीइंग बैंक्रप्ट मतलब ये Stay भाई still means position. यस Position as a bankrupt. It's a हाँ position word. Correct word is हाँ। position. दैट तो मींस whose liabilities are more than assets. नहीं देखिए ऐसा होता है, एक वर्ड है इंसॉल्वेंट, एक होता है बैंक्रप्ट। पहले हाँ। इंसॉल्वेंसी होती है फिर बैंक्रप्सी होती है। सबसे अगर इफ समवन इज अनेबल टू पे द डेट्स तो उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन अगर उसकी बैंक्रप्सी स्टार्ट कर दी जाए, ठीक है, बैंक्रप्सी स्टार्ट कर दी जाए और उसको कोर्ट ने एडजस्ट कर दिया बैंक्रप्ट, तो वो बैंक्रप्ट है। दोनों में फर्क है, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में। ये दिवालिया किसको बोलते हैं? दिवालिया बैंक्रप्ट को बोलते हैं। Bankrupt. बैंकरप्ट को बोलते हैं। हाँ। तो अगला इसमें आता है बैंक्रप्सी डेट इन रिलेशन टू ए बैंक्रप्ट मींस। अब ये बैंक्रप्सी डेट क्या है? बैंक्रप्सी डेट है एनी डेट ओड बाय हिम एज ऑन द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट। क्योंकि आपको बैंक्रप्सी शुरू करनी है। देखो एक तो है इंसॉल्वेंसी, एक होती है बैंक्रप्सी। तो बैंक्रप्सी डेट क्या बोलता है? बैंक्रप्सी डेट क्या है? एनी डेट ओड बाय हिम एज ऑन दी। तो इसमें दो डेट आएगी, एक तो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट आएगी, एक आएगी बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट। दोनों अलग, जैसे वहां पर भी होता है सीआईआरपी में भी, है ना, आपकी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट और लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, ऐसे ही। तो लिक्विडेशन की जगह यहाँ पर बैंक्रप्सी, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। एंड एनी डेट फॉर विच ही मे बिकम लायबल आफ्टर बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट बट बिफोर हिज डिस्चार्ज बाय रीजन ऑफ एनी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बिफोर द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट, ठीक है। बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट से पहले उसने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की थी, ठीक है, जिसकी वजह से वो किसी पर्टिकुलर डेट में लायबल हो गया, तो वो भी आपका बैंक्रप्सी डेट में कवर हो जाएगा, ठीक है। एनी इंटरेस्ट विच इज ए पार्ट ऑफ द डेट अंडर सेक्शन 171। उसके बाद फिर ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब 171 आएगा। फिर अगला इसमें पॉइंट है बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट। तो बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट क्या है? जिस डेट पे बैंक्रप्सी ऑर्डर पास किया गया, ठीक है। और बैंक्रप्सी ऑर्डर क्या है? इट मींस एन ऑर्डर पास्ड बाय एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 126। तो बैंक्रप्सी जहां पर भी यूज किया गया ना, यहाँ पर आप उसको समझो लिक्विडेशन, ठीक है। अब जैसे आप लिक्विडेशन में क्या डिस्चार्ज, वो वहां पर भी तो डिसोल्यूशन होता ना, तो डिसोल्यूशन को आप समझो डिस्चार्ज, आप मोटा मोटा ऐसे समझो बातों, ठीक है। बैंक्रप्सी प्रोसेस मींस ए प्रोसेस अगेंस्ट ए डेटर अंडर चैप्टर 4 and 5 ऑफ दिस पार्ट। तो बैंक्रप्सी प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस हो रहा है जो अगेंस्ट डेटर, जो अपना आप जैसे लिक्विडेशन प्रोसेस है, तो यहाँ पर ये बैंक्रप्सी प्रोसेस है। मैं साइलेंट ही कर देता हूँ, ये तो चलता ही रहेगा नहीं तो। हाँ जी, हाँ जी। और bankruptcy trustee means the insolvency professional appointed as a trustee for the estate of the bankrupt अंडर सेक्शन 125। जैसे वहां पर लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, यहाँ पर बैंक्रप्सी ट्रस्टी अपॉइंट होता है, ठीक है। ये भी एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही होगा। चैप्टर मींस a chapter under this part. Committee of creditors means a committee constituted under section 134. डेटर इंक्लूड्स ए जजमेंट डेटर। जैसे डिक्री किसी के अगेंस्ट में पास होती है, तो एक होता है डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर होता है जिसके फेवर में डिक्री पास हुई, और जजमेंट डेटर वो है जिसने पैसे देने हैं। डिक्री होल्डर वो होता है जिसने पैसे लेने हैं। तो यहाँ पर डेटर जो है वो जजमेंट डेटर भी इंक्लूडेड है, मतलब किसी के अगेंस्ट में अगर कोई डिक्री पास हो गई है तो वो भी डेटर में आ जाएगा, ठीक है। डिस्चार्ज ऑर्डर मींस एन ऑर्डर पास्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिस्चार्जिंग द डेटर अंडर सेक्शन 92, 119 एंड सेक्शन 138 एज द केस में भी। तो दोनों में डिस्चार्ज ऑर्डर इशू हो सकता है, इंसॉल्वेंसी में भी और बैंक्रप्सी में भी, ठीक है। फिर कुछ हमारे ऐसे हैं कि कुछ एक्सक्लूडेड एसेट्स। एक्सक्लूडेड एसेट्स कौन से हैं? कि भाई आपके जो एक तो इसमें एक्सक्लूडेड एसेट्स में हर जगह पर वर्ड यूज किया गया अनएनकम्बर्ड। अनएनकम्बर्ड मतलब जिसके अगेंस्ट में कोई लोन नहीं लिया गया, ठीक है।
तो unencumbered tools, books, vehicles and other equipment as are necessary for the debtor or bankrupt for his personal use or for the purpose of his employment, business or vocation. ठीक है, तो लेकिन अगर इस पर कोई लोन ले लिया गया तो वो फिर उस मान लो कार है, ठीक है ना, अब कार के अगेंस्ट में अगर आपने लोन ले लिया तो वो फिर एक्सक्लूडेड एसेट में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने कार के अगेंस्ट में कोई लोन नहीं लिया गया और फिर आप उसको पर्सनल यूज के लिए या एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस या वोकेशन के लिए यूज करते हैं तो वो फिर एक्सक्लूडेड एसेट में आ जाएगा। ये अनइनकम्बर्ड मींस बेसिकली चार्ज ना, चार्ज अन- नहीं होना चाहिए, भाई चार्ज वही, बाय एनीवन। यस वो लोन ही हो गया ना बेसिकली। अनएनकम्बर्ड नहीं, मतलब लोन फ्री, लेना है, मतलब फ्री नहीं, फ्री फ्रॉम नहीं, एनी लोन। लोन लेना है ये अलग बात है, लेकिन जो उसके ऊपर mortgage चार्ज नहीं करना है, directly। वो चार्ज करना है, चार्ज बाय वे ऑफ हाइपोथिकेशन, प्लेज, मॉर्गेज, ऐसा हो सकता है। नेचुरली, हाँ चार्ज, हाँ, हाँ तो बेसिकली उसके भाई ऊपर देखो, चार्ज नहीं है, वो प्रॉपर्टी यस दैट इज अनइनकम्बर्ड। बिल्कुल मतलब सर assets free from any loan, any Unemployed mortgage, मतलब free from free. any mortgage activity। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं राइट, नहीं, द करेक्ट वर्ड इज चार्ज, यस फ्री फ्रॉम एनी यस चार्ज। यस, चार्ज उसका could be उसका mortgage। पर्पस ये है। नॉर्मली क्या होता है भाई, लोन लोगे तो कोई लोन ऐसे आपको अनसिक्योर्ड लोन तो दे नहीं देगा, ठीक है ना, वो उसके अगेंस्ट में कोई चार्ज क्रिएट कराएगा। आप कोई कार लोगे, कार पर आप वो चार्ज नहीं क्रिएट कराएगा। तो मतलब लेमेंस लैंग्वेज में आप ऐसे समझो, लेकिन द वर्ड द टर्मिनोलॉजी यू आर यूजिंग इज करेक्ट, चार्ज इज क्रिएटेड, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर एसेट्स की बात कर रहा है वो, तो एसेट्स के अगेंस्ट में अगर आपने कोई भी चार्ज क्रिएटेड है तो वो फिर आपका एक्सक्लूडेड एसेट्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो म्यूट कर दीजिए प्लीज जो भी बोल रहे हैं। अनएनकम्बर्ड फर्नीचर, हाउस होल्ड इक्विपमेंट एंड प्रोविजंस एज आर नेसेसरी फॉर सेटिस्फाइंग द बेसिक डोमेस्टिक नीड्स ऑफ द बैंकरप्ट एंड इज इमीडिएट फैमिली, ठीक है। तो अब ये कोई अगर आपका फर्नीचर है, कोई हाउस होल्ड इक्विपमेंट है और प्रोविजंस है, अब यहां पर क्या लिखा है, वर्ड लिखा है बैंकरप्ट, ठीक है। इसका मतलब इंसॉल्वेंसी में ये चीज नहीं है इंक्लूडेड, ठीक है। पहले वाला जो था वो क्या था, यहां पर क्या लिखा है, डेटर और बैंकरप्ट। देखो दोनों में फर्क है। पहले वाली जो आइटम लिखी है 14A, उसमें क्या लिखा, अनएनकम्बर्ड टूल्स, बुक्स, व्हीकल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स एज आर नेसेसरी टू द डेटर और बैंकरप्ट। डेटर और बैंकरप्ट में फर्क है, ठीक है ना। डेटर तो वो है जिसके अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी शुरू हुई है, बैंकरप्ट वो है जिसके अगेंस्ट में बैंकरप्सी शुरू हुई है। तो ये दोनों के लिए है, ठीक है। दूसरी लाइन जो है ये किसके लिए है, ये सिर्फ बैंकरप्ट के लिए है, इसमें डेटर वर्ड नहीं यूज किया गया, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो इस तरह से कई बार ना वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है जब वो सवाल पूछता है। तो तीसरा क्या है, एनी अनएनकम्बर्ड पर्सनल ऑर्नामेंट्स ऑफ सच वैल्यू एज में बी प्रेस्क्राइब्ड ऑफ द डेटर और इज इमीडिएट फैमिली विच कैन नॉट बी पार्टेड विद इन अकॉर्डेंस विद रिलीजियस यूसेज, ठीक है। कोई मंगलसूत्र है, इस टाइप का कोई यहाँ ज्वेलरी पे खाली डेटर लिया है, हाँ हाँ, यहाँ पर ये डेटर लिया। तो हमें ये भी पढ़ना है साथ में कि कहां पर डेटर है, कहां पर बैंकरप्ट है, कहां पर दोनों है, ठीक है। अब ये चीज मैं भी आप ही के साथ पहली बार पढ़ रहा हूँ, मेरे भी ज्ञान चक्षु अभी खुल रहे हैं, पहले मैंने नहीं पढ़ा इसको इतना ध्यान से। अब जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है यार, ये तो यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ सच में, मतलब आप पहले वाले रिकॉर्डिंग देखोगे मेरी, तो कहां पर ये बात मुझे भी नहीं समझ में आई, लेकिन यहाँ पर जो मैंने पढ़ा तो मेरे भी ज्ञान नेत्र खुल गए दोबारा से। इसको ही तो लीगल डेटर रीडिंग में भी बोलते थोड़ा हैं। कंफ्यूजन हो रहा है एक्चुअली। यहाँ पे डेटर द मोमेंट वी से मींस डेटर इज हु फ्रॉम, डेटर इज हु एक्चुअली। सर जी डेटर की यहीं डेफिनेशन पे दे रखी value है। भी लिखना इम्पोर्टेंट है ना। अब वो अरे वैल्यू तो आगे प्रेस्क्राइब्ड है ना, वैल्यू तो बताएंगे ना। हु ओज मनी टू अदर बेसिकली। हाँ हाँ नहीं, नॉर्मल डेफिनेशन तो वही है, हु ओज मनी टू अदर्स ना। हाँ, वही तो है, और क्या है। और इंडिविजुअल बैंकरप्सी में वही रहेगा ना, इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी ही इज टेकिंग लोन, ही इज टेकिंग सम भाई काइंड देखो ऑफ ऐसा ना, सर्विसेज। इसमें क्या है, ये डेटर और क्रेडिटर की बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ पर डेटर होता है या क्रेडिटर होता है, तो यही है। तो ये कॉर्पोरेट डेटर, जो वहाँ कॉर्पोरेट सीडी था वो यहाँ डेटर है। वो यहाँ डेटर है नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म है ना। करेक्ट करेक्ट। और ऐसे ही यहाँ पर क्रेडिटर, वहां पर दो होते थे, ऑपरेशनल क्रेडिटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। तो आगे और क्लैरिटी आएगी इसमें, ठीक है। तो एक्सक्लूडेड एसेट में ये पॉइंट आप भी ध्यान रखिएगा कि कहां पर डेटर है, कहां पर बैंकरप्ट है, कहां पर दोनों है, ठीक है। तो टूल्स बुक्स में दोनों चीज दी गई है, अनकम्बर्ड फर्नीचर में सिर्फ बैंकरप्ट दिया गया है, और एनी अनकम्बर्ड पर्सनल ऑर्नामेंट्स ये यहाँ पर सिर्फ डेटर दे दिया गया, ठीक है। अब रह गई बात
यूज के है कितना उसके अंदर, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये जो अनएनकम्बर्ड पर्सनल ऑर्नामेंट्स हैं ये 1 लाख रुपए तक के हैं, ठीक है। ये ये वाले, कहाँ दिया हुआ गुप्ता जी? ये वो पर्सनल गारंटर के रूल्स में दे रखा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक। तो ₹1,00,000 अलग। shall not exceed 1 लाख रुपीज, ठीक है। और एनी एनकम्बर्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और पेंशन प्लान टेकन इन द नेम ऑफ डेटर और हिज इमीडिएट फैमिली, ठीक है। एनी अनकम्बर्ड सिंगल ड्वेलिंग यूनिट ओन्ड बाय द डेटर ऑफ सच वैल्यू एज में बी प्रेस्क्राइब। यहाँ पर 2 वैल्यू है, 10 लाख और 20 लाख, ठीक है। 20 लाख अर्बन एरिया, 10 लाख हाँ रूरल। हाँ हाँ, तो यहाँ पर अर्बन एरिया में बोलता है 20 लाख, ये सवाल पूछ लेता है, अर्बन एरिया रुपीज 20 लाख और रूरल एरिया, ये साथ साथ ही लिख देता हूं यहीं पर ही, ₹10 लाख, ठीक है जी। चलिए, तो जो मेन बात ध्यान में रखनी है वो आप इसका ऐसे चार्ट बना लेंगे कि कहां पर डेटर है, कहां पर बैंकरप्ट है, कहां पर दोनों है, ठीक है। वैल्यू इसका एक चार्ट बना लेंगे, आप ग्रुप में भी डाल देंगे सबके बेनिफिट के लिए। एक्सक्लूडेड डेट क्या है? जैसे कुछ एक्सक्लूडेड एसेट्स हैं, ऐसे ही कुछ एक्सक्लूडेड डेट है। डेट का मतलब यह है कि इससे छुटकारा नहीं होगा, ठीक है। कौन से? लाइबिलिटी टू पे फाइन इम्पोज्ड बाय ए कोर्ट और ट्रिब्यूनल। क्या होता है, कई बार एक आदमी मान लो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया, ठीक है, तो वो उसके सब बेच बाच के और उसको कह देते हैं भाई अब तुम फ्री हो, ठीक है, अब तुम आजाद हो। जैसे जेल काट के कोई आ गया तो आजाद हो जाता ना। लेकिन इससे छुटकारा नहीं होगा उसका, ये उसको फिर देना पड़ेगा, क्योंकि वो जिंदा रहेगा तो कुछ कमाएगा ना दोबारा से भी। तो वो ये कहता है कि लाइबिलिटी टू पे फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, liability to pay damages for negligence, nuisance or breach of a statutory, contractual और legal obligation। अब कोई एक्सीडेंट मार दिया, उसमें डैमेजेस देने पड़े तो वो देने पड़ेंगे, ठीक है, उससे छुटकारा नहीं है। अगला, liability to pay maintenance to any person under any law for the timing in force। आपका कोई एलिमनी देना पड़ रहा है मैरिज का, वो सब देना पड़ेगा आपको। liability in relation to a student loan and any other debt as may be prescribed, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो डेट है वो बताता है कि भाई जो भी प्रेस्क्राइब्ड है। अब प्रेस्क्राइब्ड क्या है इसमें? कहीं दिया नहीं हुआ प्रिस्क्राइब। हाँ, वो कहता, कई बार ऐसा होता है ना, वो देते नहीं है, वो देते इसलिए नहीं है कि भाई वो रूल्स के लिए अपने पास एक रेजिडुअरी पावर रख लेते हैं, है ना। तो कई बार ऐसा होता है ना कि भाई बाद में प्रेस्क्राइब कर देंगे उस चीज को, तो वो चीज है, ठीक है जी। अगला अगला इसमें आ गया फर्म। फर्म मीन्स ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स carrying on business in partnership whether or not registered under section 59 of the partnership act। अब हमें मालूम ही है कि you can run a partnership business either as registered or unregistered, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्म क्या बोल रहा है, मीन्स ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप वेदर और नॉट रजिस्टर्ड, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, दोनों ही उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। एंड इमीडिएट फैमिली ऑफ द डेटर मीन्स हिज स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स। देखिए दो चीजें अलग अलग हैं, एक तो है इमीडिएट फैमिली, एक है रिलेटिव। रिलेटिव की डेफिनेशन हमने पढ़ ली पहले ही, है ना, रिलेटिव की तो लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। अब ये इमीडिएट फैमिली, इमीडिएट फैमिली कहाँ था हमारा, सबसे पहले इमीडिएट फैमिली ही पढ़ा था हमने, ये ए पर्सन हु बिलोंग्स टू द इमीडिएट फैमिली ऑफ द डेटर, बाद में फिर रिलेटिव आया, ठीक है ना। तो इमीडिएट फैमिली में कौन कौन है आपके, ये इमीडिएट फैमिली में ये आपके शामिल है। इसमें डिपेंडेंट पेरेंट्स में वाइफ के पेरेंट्स नहीं आएंगे ना? कौन से? इसमें जो इमीडिएट फैमिली में इसलिए लिखता डिपेंडेंट पेरेंट्स जो मींस हिज स्पाउस, उसकी वाइफ आ जाएगी, अगर वाइफ है तो हस्बैंड आ जाएगा, ठीक है। वो ठीक है, हाँ। और डिपेंडेंट चिल्ड्रन आ जाएंगे और डिपेंडेंट पेरेंट्स आ जाएंगे। पेरेंट्स तो मतलब वही, पेरेंट्स का मैन मतलब और दी दोनों। नहीं, नेचुरली देखो ऐसा है ना भाई, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट, भाई डेटर तो एक ही होगा ना, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है, ओके ओके, उसका सेक्स तो एक ही होगा ना। ठीक ठीक ठीक। तो बस सिंपल बात है, उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स जो भी है, अगर लेडी है तो उसके पेरेंट्स, जेंट्स है तो उसके पेरेंट्स, सिंपल। ठीक। अगला,
ये मुझे भी नहीं पता, आप पूछते हो तो मुझे भी ध्यान आ जाता है, ऐसे ही मैं जवाब दे देता हूँ, वो सही निकल जाता ज्यादातर। अगला चलते हैं, पार्टनरशिप डेट। पार्टनरशिप डेट मीन्स ए डेट फॉर विच ऑल द पार्टनर्स इन ए फर्म आर जॉइंटली लायबल। मतलब कोई कोई ऐसे भी डेट हो सकते हैं जिसके लिए एक पर्टिकुलर पार्टनर लायबल हो, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप डेट वो वाला डेट है जिसके लिए सारे ही पार्टनर जॉइंटली लायबल है। मान लो पार्टनर ने एक मकान खरीद लिया अपना, ठीक है ना, उसने उसके ऊपर लोन ले लिया, तो वो तो फिर पार्टनरशिप डेट नहीं होगा ना। तो पार्टनरशिप डेट वही होगा जिसके लिए सारे पार्टनर जॉइंटली लायबल। अच्छा, मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है, उस हम्म पार्टनरशिप फर्म में हम्म एक पार्टनर ने हम्म कोई फर्म ने कोई लाइबिलिटी के लिए वो गारंटर है, वो इंडिविजुअल पार्टनर। हम्म। अब कल को मान लीजिए वो फर्म उसको पेमेंट नहीं कर पाई, वो लाइबिलिटी सेटिस्फाई पेमेंट नहीं कर पाई, तो गारंटी इन्वोक हो गया और वो हम्म पार्टनर को अपने पॉकेट से देना पड़ा। तो हम्म। उसका जो रिकवरी करेगा वो फर्म से करेगा कि सारे पार्टनर से करेगा? देखिए उसका रूल है, उसका रूल ये है कि पार्टनरशिप डेट जो है पहले पार्टनरशिप फर्म में से पे होते हैं, बाद में इंडिविजुअल एसेट से पे होते हैं। ऐसे ही जो इंडिविजुअल की लायबिलिटी है वो पहले इंडिविजुअल एसेट से सेटिस्फाई होती है, उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म से सेटिस्फाई होती है। ये रूल है, ओके, हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक। क्वालिफाइंग डेट, क्वालिफाइंग डेट मींस अमाउंट ड्यू व्हिच इंक्लूड्स इंटरेस्ट और एनी अदर सम, ठीक है। ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट्स ओड अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट by the debtor for a liquidated sum either immediately or at certain future date and does not include। अब क्वालिफाइंग डेट क्या है, हमने एक पढ़ लिया वर्ड एक्सक्लूडेड डेट, एक पढ़ लिया एक्सक्लूडेड एसेट्स, और यहां पर क्या है, ये है क्वालिफाइंग डेट। तो क्वालिफाइंग डेट क्या है, एक तो वो है कि जो भी ड्यू है फॉर ए लिक्विडेटेड सम। लिक्विडेटेड सम का मतलब क्या होता है कि लाइबिलिटीज फाइनल, ठीक है। एक होता है Crystallize, हाँ crystallize. हाँ, एक होता है अनलिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड का मतलब होता है लाइबिलिटी इज देयर बट इट इज नॉट सर्टेन, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा है फॉर ए लिक्विडेटेड सम, चाहे वो इमीडिएटली हो चाहे एट सर्टेन फ्यूचर टाइम हो। लेकिन उसमें क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, एक तो एक्सक्लूडेड डेट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। एक्सक्लूडेड डेट हमने पहले ही पढ़ लिया, वो बेसिकली क्या है, कोर्ट के फाइन्स वगैरह है, ठीक है, या स्टूडेंट लोन वगैरह है। और फिर ए डेट टू द एक्सटेंट इट इज सिक्योर्ड, जो सिक्योर्ड है वो तो सिक्योर्ड क्रेडिटर उसको अपने आप ही बेच बाज के कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे 52 में हमने पढ़ा सीआईआरपी में, ऐसे यहाँ पर अगर कोई सिक्योर्ड एसेट सिक्योर्ड डेट है तो वो भी आपका क्वालिफाइंग डेट में नहीं आता, क्योंकि सिक्योर्ड को तो हमें अलग ही रखना पड़ेगा ना, वो तो अपने आप ही सिक्योरिटी बेच बाज के कर लेगा। तीसरा है एनी डेट विच हैज बीन इनकर्ड 3 months प्रायर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। फ्रेश स्टार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि फ्रेश स्टार्ट में कहते हैं जाओ तुम मौज करो, तुम्हें कुछ नहीं देना लेना, ठीक है। तो अगर कोई भी डेट है विच हैज बीन इनकर्ड 3 months प्रायर टू द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका क्वालिफाइंग डेट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, नहीं डज होगा। नॉट इंक्लूड, ठीक है। मतलब तीन, अब इसका मतलब क्या हुआ कि 3 महीने के अंदर अंदर जो अगर कोई डेट इनकर हुए हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सब जगह 1 year 2 year 6 months ऐसे ही फिगर आता है ना, हाँ if you look at the Pufe transactions, हाँ जी हाँ जी। सब जगह 2 years 6 months ऐसे ही डेट आती है, यहाँ ये 3 months डेट थोड़ा अजीब लग रहा है, व्हाट इज नहीं दिस, व्हाई? एक्चुअली वो पता, देखो ऐसा जी, वो कहता कि फ्रेश स्टार्ट की आपने एप्लीकेशन लगाई है। फ्रेश स्टार्ट भूखे नंगे लोगों के लिए है बेसिकली। क्या आपकी इनकम ही मान लो वो बहुत ही कम है, एसेट्स आपके 20,000 है, इनकम आपकी 35,000 है, ये सब चीजें 20 35 60 की फिक्रें उसके अंदर आती है, वो बड़ा ही लिमिटेड लोगों के लिए है। तो उसके लिए कहता है आपने कोई 3 महीने पहले लोन ले लिया था तो वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, वो आगे पढ़ेंगे फ्रेश स्टार्ट। रीपेमेंट प्लान क्या है, रीपेमेंट प्लान मींस अ प्लान प्रिपेयर्ड बाय द डेटर इन कंसल्टेशन विद द आरपी। मैंने कल ही आपको बताया था कि यहाँ पर रेजोल्यूशन तो एप्लीकेंट कोई आएगा नहीं, भाई इंडिविजुअल की लाइबिलिटी है, जैसे वहां तो कंपनी की लाइबिलिटी होती है, तो कंपनी की लाइबिलिटी के लिए तो कोई बाहर आ जाता है, वो कंपनी के एसेट्स ले लेगा, इसमें इंडिविजुअल का क्या ले लेगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, रीपेमेंट प्लान होता है, यहाँ कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं होता। और रीपेमेंट प्लान भी कौन बनाता है, डेटर बनाता है, इन कंसल्टेशन विद आरपी बनाता है, ठीक है ना। तो repayment plan means a plan prepared by the debtor in consultation with the RP under section 105 containing a proposal to the COC for restructuring of his debts or affairs, ठीक है। अगला फिर आरपी, यहाँ पर जो है आईआरपी और आरपी वाली कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आरपी की ही वर्डिंग यूज की गई है, ठीक है। यहाँ आईआरपी वर्ड यूज नहीं किया गया। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मींस एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड अंडर दिस पार्ट, पार्ट मतलब पार्ट 3
एज ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉर कंडक्टिंग द फ्रेश स्टार्ट और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। एक बात आप इसमें खास नोट कर रहे हैं, क्या बात है? रेजोल्यूशन ये जो 21 है, इसकी डेफिनेशन में एक खास बात आपको नजर आ रही है? मुझे तो नजर आ रही है। वो क्या नजर आ रही है कि यहाँ पर बैंक्रप्सी इंक्लूडेड नहीं है, फ्रेश स्टार्ट और इंसॉल्वेंसी, क्योंकि बैंक्रप्सी अगर होगी तो उसके लिए बैंक्रप्सी ट्रस्टी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर वहां CIRP में क्या होता है, IRP आरपी होता है, और लिक्विडेशन में लिक्विडेटर होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर IRP है नहीं, RP ही है, ठीक है। और वो दोनों के लिए, फ्रेश स्टार्ट भी और इंसॉल्वेंसी के लिए भी। और अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट कौन है? मींस ए बैंकरप्ट हु हैज नॉट रिसीव्ड ए डिस्चार्ज ऑर्डर अंडर सेक्शन 138। तो जिसके अगेंस्ट में डिस्चार्ज ऑर्डर नहीं हुआ वो अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट है, ठीक। आगे चलते हैं। अब आ गया जी फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश स्टार्ट क्या है? फ्रेश स्टार्ट आप समझिए कि अभी तो कोई केस आया नहीं, वैसे इसमें गवर्नमेंट अपने हिसाब से रख लेती है। मान लो कोई गरीब लोगों के लोन माफ करने हो तो उसके लिए ये फ्रेश स्टार्ट कर दिया कि फ्रेश स्टार्ट में क्या करना है यानी इसमें कोई आपको। केस स्टडी नहीं है, अभी आया नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है रियलिटी में। नहीं, रियलिटी में नहीं हुआ, लेकिन केस स्टडी तो बना वो देते ठीक है, वो वैसे हैं। बना हाँ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वैसा नहीं आया। तो एलिजिबिलिटी फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन, पहला क्या है? वो कहता है जी ए डेटर हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स एंड फुलफिल द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2, तो वो एप्लीकेशन लगा सकता है फॉर फ्रेश स्टार्ट फॉर डिस्चार्ज ऑफ हिज क्वालिफाइंग डेट, ठीक है। अब एक पहला क्वेश्चन तो इसमें ये आ गया कि फ्रेश स्टार्ट में भी सारे डेट से डिस्चार्ज नहीं मिल रहा उसको, सिर्फ क्वालिफाइंग डेट से डिस्चार्ज मिल रहा है। और क्वालिफाइंग डेट में क्या इंक्लूडेड नहीं है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उसके अंदर एक्सक्लूडेड डेट नहीं है, ठीक है। एक्सक्लूडेड डेट क्या था वो भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ए डेटर में अप्लाई आइदर पर्सनली और थ्रू आरपी, खुद भी अप्लाई कर सकता है, आरपी के थ्रू भी कर सकता है कि भैया मुझे फ्रेश स्टार्ट दिया जाए, ठीक है। क्या है उसकी ग्रॉस एनुअल इनकम 60,000 से ज्यादा नहीं, मतलब 5,000 रुपए पर मंथ की इनकम है उसकी, ठीक है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द डेटर डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज, मतलब उसके जो एसेट्स हैं वो 20,000 रुपए से ज्यादा के नहीं है। डज नॉट एक्सीड का मतलब अगर 20,000 होगा तो आ जाएगा इसमें, ठीक है। 20,000 एक होगा तो नहीं आएगा। तीसरा, द एग्रीगेट वैल्यू द क्वालिफाइंग डेट्स डज नॉट एक्सीड 35,000 रुपीज, तो 20, 60 और 35, ठीक है। यहाँ पे भी उन लोग ये करते हैं, MCQ पूछते हैं हाँ डज नॉट एक्सीड और नॉट एक्सीड विच इज करेक्ट। तो डज नॉट एक्सीड इज करेक्ट। हाँ, डज नॉट एक्सीड, जो हाँ ऑप्शंस आते हैं ना वो हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। वो ट्रिकी पूछते हैं। हाँ हाँ डज नॉट भी लिखते हैं और खाली नॉट भी लिखते हैं। हाँ हाँ, ये बहुत अगर ट्रिकी है, यानी कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। आपको पता नहीं रहेगा तो आप नॉट एक्सीड लिखेंगे, नॉट टू एक्सीड विच इज अ नॉर्मल थिंग, वो हाँ गलत हो बिल्कुल जाएगा आंसर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द क्वालिफाइंग डेट डज नॉट एक्सीड 30, तो 20, 60 और 35। और फिर क्या है, ही इज नॉट एन अनडिस्चार्ज्ड बैंकरप्ट, ये भी एक इसके लिए है। फिर उसके पास कोई मकान भी नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज एनकम्बर्ड और नॉट, चाहे चार्ज क्रिएटेड है या नहीं है, ठीक है। फिर फ्रेश स्टार्ट, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन और बैंकरप्सी प्रोसेस नॉट सबसिस्टिंग, कोई उसका पहले से ही फ्रेश स्टार्ट, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन या बैंकरप्सी नहीं चल रहा है, ठीक है। And no previous fresh start order under this chapter has been made in relation to him in the preceding 12 months of the date of the application for fresh start, मतलब पिछले 12 महीनों में कोई पहले फ्रेश स्टार्ट का ऑर्डर नहीं आया है उसका, तो ये भी इसके अंदर है। तो अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपको एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये आज के दिन में ये एप्लीकेबल नहीं है ना, इतना कम किसी को भी नहीं रहता ना, 20,000 या नहीं बता रहा हूं ना, अरे भाई स्ट्रीट वेंडर भी ज्यादा कमाते हैं, स्ट्रीट वेंडर नहीं, जो वो होता है ना, वही वो ITR वगैरह तो फाइल नहीं करते ना। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो वो कर हाँ, सकती है कि भाई लैंडलेस लेबरर के लिए कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं अच्छा ना। अच्छा, ओके वो गवर्नमेंट अपने पास पॉलिटिकल लीव रखती है कि अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो कर देंगे, क्या है उसमें, ओके है ना। ओके। तो कोई टी प्लांटेशन के वर्कर्स हैं, कुछ भी हैं इस टाइप से, कईयों के लिए कर सकते हैं वो, कोई दिक्कत थोड़ी है। एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर वो ये ये कहता है मुझे कि लगता है उनको ध्यान में रख के ही किया गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रखते हैं।
ये ज्यादातर पॉलिटिकल ही है इसका यस objective। बिल्कुल बिल्कुल वही। बॉन्डेड लेबर लेते हैं वो। हाँ बिल्कुल, ये जो किसान खेतों में किसानों का वेव करते हैं, लोन वेव करते ये हैं, माइंस में कोई काम करने वाले हैं, माइंस वाले हैं। स्टोन क्वेरीज में काम करने वाले हैं, उन लोगों के लिए कर सकते हैं। नहीं, टी गार्डन्स में भी है ये सब इश्यू। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही, उसी पर्पज से किया गया। एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर, व्हेन एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 80 बाय ए डेटर, ठीक है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने 80 में पढ़ा था कि आप दो तरह से एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, या तो पर्सनली या थ्रू रेजोल्यूशन प्रोविजन। आरपी। अब ये पहले क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि जब उसने खुद फाइल की है तो, ठीक है। अब ये आरपी की बात नहीं कर रहा 81 में, अगर पहले ये बता रहा है कि अगर डेटर ने फाइल की तो क्या होगा। डेटर ने जब फाइल की तो आईआरपी शैल कमेंस ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेड एप्लीकेशन, ठीक है, इन रिलेशन टू ऑल द डेट्स एंड शैल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन एडमिशन और रिजेक्शन। तो जब एडमिट हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी तो ये इट विल सीज टू हैव इफेक्ट, ठीक है, क्लियर है। यहां तक आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द इंटरिम मॉरिटोरियम, अब आप ये ध्यान रखिए कि यहां पर सिर्फ वो बात हो रही है जो उसने खुद फाइल की है, ठीक है। ड्यूरिंग द इंटरिम मतलब इतना डिटेल में आपको पढ़ना है, दिमाग लगा के पढ़ना है, एक एक बात ध्यान रखनी है, एक एक पॉइंट। ड्यूरिंग द इंटरिम मॉरिटोरियम पीरियड any legal action or legal proceeding pending in respect of any of his debts shall be deemed to have been stayed, ठीक है। तो इंटरिम मॉरिटोरियम में भी कोई भी लीगल एक्शन या लीगल प्रोसीडिंग कोई भी जो पेंडिंग है, ठीक है, वो स्टे हो जाएगी। एंड नो क्रेडिटर शैल इनिशिएट एनी लीगल एक्शन और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेट, ठीक है। ये सारे डेट्स के लिए नहीं है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेट। सच डेट कौन सा हो गया, जो ऊपर वाला डेट है आपका, ये कितना डेट था आपका 35,000 से एक्सीड नहीं करता, इसी डेट की बात कर रहा है। जो सीलिंग लिमिट के अंदर है। हाँ हाँ, तो नो, और इसके लिए कोई भी क्रेडिटर इनिशिएट नहीं करेगा, ठीक है। द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 80 shall be in such form and manner and accompanied by such fees as may be prescribed। तो ये हमारा है सेक्शन 81। तो सेक्शन 81 में आप देख लेंगे कि कौन सा फॉर्म है। सेक्शन 81 में कौन सा फॉर्म है जी, अच्छा अभी आया ही नहीं ना इसका, इसके कुछ रूल्स वगैरह आए नहीं है, रेगुलेशंस है ही नहीं। रूल है ही नहीं इसके, तो इसीलिए आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। वो सिर्फ इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के आए हैं, वो भी पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर के लिए, ठीक है। और फास्ट ट्रैक के लिए है मेरे पास। हाँ ये ये हो गया। बाकी डिटेल दिया हुआ सब सेक्शन 3 और 4 में ना, कौन सा, हाँ ये सब सेक्शन 4 में जो है। हाँ, द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 3 शैल कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सपोर्टेड बाय एन, मैं मतलब फॉर्म नंबर नहीं आया उसमें, है ना। हाँ ठीक। तो एप्लीकेशन में क्या क्या डिटेल जाएगी, एक तो लिस्ट ऑफ ऑल डेट्स ओड बाय द डेटर एज ऑन द डेट ऑफ द सेड एप्लीकेशन along with details related to the amount of each debt, interest payable thereon and the names of the creditors to whom each debt is owed। तो ये सारी लिस्ट देगा आपको, ठीक है, किस किस को कितना कितना देना है। लाइट चली गई है,